خوش آمدید. آج ICC T20 ورلڈ کپ 2026 میں ایک ایسا دن گزرا ہے جسے شاید ٹورنامنٹ کا ٹرننگ پوائنٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے پاس تجزیے کے لیے 3 میچز ہیں: متحدہ عرب امارات بمقابلہ افغانستان، انگلینڈ بمقابلہ اٹلی، اور وہ میچ جس نے سب کو چونکا دیا، آسٹریلیا بمقابلہ سری لنکا. ایک ایسا دن جب کرکٹ کے بڑے بڑے برج لڑستے ہوئے نظر آئے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آج صرف جیت یا ہار کا دن نہیں تھا، بلکہ یہ دن تھا سٹیٹس کو چیلنج ہونے کا. ایک طرف دیکھیں تو ایک سابقہ چیمپئن ٹیم آسٹریلیا ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے دہانے پر کھڑی ہے، تو دوسری طرف اٹلی جیسی ٹیم نے انگلینڈ کو وہ ٹکر دی جس کی کسی کو امید نہیں تھی. یہ دن اس فارمیٹ کی خوبصورتی اور اس کی بے رحمی دونوں کو ایک ساتھ ظاہر کرتا ہے. تو آج کا ہمارا مشن صاف ہے. ہم ان تینوں میچز کی گہرائی میں جائیں گے. صرف سکور کارڈ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب ہوا کیسے، ان نتائج کا سپر 8 مرحلے پر کیا اثر پڑے گا، اور سب سے اہم سوال، آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم اس نازک موڑ پر آخر پہنچی کیسے. تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ ڈرامہ ہوا: آسٹریلیا بمقابلہ سری لنکا. آسٹریلیا جو پہلے ہی زمبابوے سے ایک غیر متوقع شکست کھا چکا تھا، ان کے لیے تو یہ میچ بقا کی جنگ تھی. جی بالکل. اور جس طرح انہوں نے بیٹنگ شروع کی، لگا جیسے پچھلے میچ کا سارا غصہ آج گیند پر نکال رہے ہیں. کیا زبردست آغاز تھا. میچل مارش اور ٹریوس ہیڈ نے جس طرح کی بیٹنگ کی، وہ تو کسی بھی ٹیم کو نفسیاتی طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی تھی. بالکل. مارش نے 27 گیندوں پر 54 اور ہیڈ نے 29 گیندوں پر 56 رنز بنائے. وہ صرف چھکے نہیں مار رہے تھے، وہ شری لنکن بولرز کی لائن اور لینتھ بگاڑ رہے تھے. صرف 8.3 اوورز میں سکور 104 رنز بغیر کسی نقصان کے. میں تو سوچ رہی تھی کہ آج 220 یا 230 کا ہنسا بھی محفوظ نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا آسٹریلیا ایک بڑا پیغام دے رہا ہے کہ انہیں ہلکے میں نہ لیا جائے. لیکن یہیں سے کہانی نے ایسا پلٹا کھایا کہ یقین کرنا مشکل ہے. اور یہی T20 کرکٹ ہے. 104 پر 0 سے 181 پر آل آؤٹ. یہ صرف ایک بیٹنگ کولیپس نہیں ہے، یہ ایک ذہنی کولیپس ہے. جیسے ہی پہلی وکٹ گری، ایسا لگا کہ آسٹریلین ڈریسنگ روم میں کوئی سوئچ آف ہو گیا ہے. جو بلے باز آتے گئے وہ جارحانہ شاٹس کھیلنے کی کوشش میں وکٹیں گواتے گئے. اچھا، لیکن اس کولیپس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آسٹریلین بلے باز حد سے زیادہ پر اعتماد ہو گئے تھے، یا پھر سری لنکن بولنگ میں کچھ خاص تھا؟ خاص طور پر دشنت ہیمنتھا نے تو کمال ہی کر دیا. میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا امتزاج تھا. آسٹریلیاوی بلے بازوں نے شاید سوچا کہ اب وہ ہر گیند کو باؤنڈری کے باہر بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ ہیمنتھا کو جاتا ہے. انہوں نے صرف وکٹیں نہیں لی، انہوں نے اپنی رفتار میں تبدیلی اور گگلی کا بہترین استعمال کیا. آسٹریلیاوی بلے باز جو تیز گیند بازی کھیلنے کے عادی ہیں، وہ ان کی سست گیندوں کو پڑھنے میں ناکام رہے اور بڑے شاٹس کھیلتے ہوئے سیدھا فیلڈرز کے ہاتھوں میں کیچ دے بیٹھے. یہ صرف اچھی بولنگ نہیں، بلکہ ایک بہت ذہین حکمت عملی تھی. یعنی انہوں نے آسٹریلیا کی طاقت کو ہی ان کی کمزوری بنا دیا. اب ہدف تھا 182 کا. مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں. اور پھر پیتھم نسانکا نے جو اننگز کھیلی، وہ شاید اس ورلڈ کپ کی بہترین اننگز میں سے ایک کے طور پر یاد رکھی جائے گی. خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے خطرہ وہی موڑ لیا جہاں ضرورت تھی. ان کے 10 چوکے اور 5 چھکے صرف پاور ہٹنگ نہیں تھے، بلکہ ذہانت سے کھیلے گئے شاٹس تھے. اور کسل مینڈس نے ان کا بہترین ساتھ دیا. 38 گیندوں پر 51 رنز کی اننگز اور 97 رنز کی شراکت نے تو میچ کو پوری طرح آسٹریلیا کی گرفت سے چھین لیا. بالکل. انہوں نے ہدف کو اتنا آسان بنا دیا کہ آخر میں کوئی دباؤ ہی نہیں رہا. اور اس جیت کے ساتھ جو ریکارڈز بنے ہیں، وہ اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتے ہیں. یہ T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں سری لنکا کا سب سے کامیاب رن کا تعاقب ہے. اس سے پہلے انہوں نے اتنا بڑا ہدف کبھی حاصل نہیں کیا تھا. واہ! اور وہ بھی آسٹریلیا جیسی مضبوط بولنگ لائن اپ کے خلاف. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس سے نسانکا کی اننگز کی اہمیت اور بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف کسی بھی ٹیم کا سب سے بڑا کامیاب رن کا تعاقب ہے. یعنی آسٹریلیا ورلڈ کپ میں 181 رنز کا دفاع پہلے کبھی نہیں ہارا تھا. اچھا، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. جی. اور ایک اور بات، نسانکا کی سینچری آسٹریلیا کے خلاف T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی بلے باز کی پہلی سینچری ہے.
उससे पहले उमर अकमल का 94 रन्स का स्कोर सबसे ज्यादा था। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि कितनी गैर मामूली कारकर्दगी थी। तो इस शानदार जीत के बाद श्रीलंका तो सुपर 8 में पहुंच गया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का क्या बनेगा? उनकी किस्मत तो अब दूसरों के रहमो करम पर है। बिल्कुल, और ये किसी भी बड़ी टीम के लिए सबसे बुरी सूरत-ए-हाल होती है। अब उनकी नजरें जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच पर होंगे। अगर जिम्बाब्वे वो मैच जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। उनके लिए एक और तशवीश की बात एडम ज़ैम्पा की फॉर्म है। वो उनके अहम तरीन बॉलर हैं और लगातार दूसरे मैच में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, जो उनकी बॉलिंग की गहराई पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ऑस्ट्रेलिया की ये हालत देखकर लगता है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी बड़ी टीम महफूज नहीं है, और वो आज अकेले नहीं थे जिन्हें एक गैर मुतवक्के चैलेंज का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की कहानी भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प है। जी, इंग्लैंड बमुकाबला इटली मैच को अगर सिर्फ स्कोर कार्ड से देखें तो लगेगा कि इंग्लैंड ने आराम से 24 रन से जीत लिया, लेकिन मैच की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन्स का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर के असल मेमार विल जैक्स थे। जब लग रहा था कि इंग्लैंड 180-185 तक महदूद रह जाएगा, उन्होंने आखिर में आकर सिर्फ 22 गेंदों पर 53 रन्स की ऐसी तूफानी इनिंग्स खेली जिसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, उनकी इनिंग्स के वजह से इंग्लैंड 200 के पार पहुंचा, लेकिन मेरे लिए इस मैच की असल कहानी इंग्लैंड की बैटिंग नहीं बल्कि इटली का जवाब था। 203 रन्स के हदफ के ताक़ुब में अक्सर एसोसिएट टीमें शुरू में ही हिम्मत हार जाती हैं, लेकिन इटली ने कमाल का जज्बा दिखाया। उन्होंने पूरे 20 ओवर्स खेले और 178 रन्स बनाए। ये स्कोर बताता है कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी मैच नहीं छोड़ा। और इस लड़ाई की क़ियादत की बेन मेनेंटी और ग्रांट स्टुअर्ट ने। बेन मेनेंटी ने तो कमाल ही कर दिया। 25 गेंदों पर 60 रन्स, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। एक वक्त तो इंग्लिश कैंप में जरूर खलबली मच गई होगी कि कहीं तारीख का सबसे बड़ा अपसेट ना हो जाए। सही कहा। स्टुअर्ट ने भी 23 गेंदों पर 45 रन्स बनाकर खूब साथ दिया। यही इस मैच की खूबसूरती थी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक बयान था कि एसोसिएट टीमें अब सिर्फ शिरकत के लिए नहीं आती। मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन हम अगले राउंड में पहुंच गए हैं। हमें खास तौर पर अपनी बैटिंग में मजीद बहादुर होने की जरूरत है। 202 रन्स बनाने के बाद भी अगर कप्तान ये कह रहा है कि हमें मजीद बहादुर होना है, तो ये दरअसल इटली की कारकर्दगी की सबसे बड़ी तारीफ है। इसका मतलब है कि इटली ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वो अपनी जीत से भी पूरी तरह मुतमईन नहीं है। और दूसरी तरफ इटली के कप्तान हैरी मिनेनिटी का बयान सुनिए। उन्होंने कहा, हमने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम पर दबाव डाला, जो हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे जाहिर होता है कि एसोसिएट टीमें अब बड़ी टीमों को चैलेंज कर रही हैं, जो क्रिकेट के खेल के लिए बहुत अच्छा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बयान है। जी, और इस बात की तस्दीक प्लेयर ऑफ द मैच विल जैक्स ने भी की। उन्होंने बेन मेनेटी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो चंद ओवर मजीद खेल जाते तो कुछ भी हो सकता था। जब मुखालिफ टीम का बेहतरीन खिलाड़ी ये माने, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो एक तरफ बड़ी टीमें लड़खड़ा रही थीं, दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो बहुत खामोशी से अपना काम करती जा रही है और हर मैच के साथ मजीद खतरनाक नजर आ रही है। बात करते हैं दिन के पहले मैच की। अफगानिस्तान बमुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात। जी, ये निस्बतन यकतरफा मुकाबला रहा, लेकिन इसने अफगानिस्तान की बढ़ती हुई ताकत को एक बार फिर साबित किया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन्स बनाए, जिसमें सुहेब खान की 68 रन्स की अच्छी इनिंग्स शामिल थी। ये एक काबिले इज्जत मजमुआ था, लेकिन अफगानिस्तान के इरादे कुछ और थे। और इस मैच की पूरी कहानी एक ही खिलाड़ी के गिर्द घूमती है, अजमतुल्ला उमरज़ई। क्या शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी थी। बिलाशुबा वो उस मैच के हकीकी हीरो थे। पहले बॉलिंग में 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन्स देकर 4 विकेटें हासिल करना T20 में एक गैर मामूली कारनामा है, और उन्होंने जिस तरह अहम मौकों पर विकेटें ली, उसने यूएई को कभी भी मोमेंटम हासिल नहीं करने दिया। और फिर जब बैटिंग में थोड़ी मुश्किल पेश आई, जब 140 पर 5 विकेटें गिर गई थीं, तो वहां भी वो दीवार बनकर खड़े हो गए। आकर सिर्फ 21 गेंदों पर 40 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर मैच खत्म कर दिया। ये एक मुकम्मल और गालिब ऑलराउंड कारकर्दगी थी। और यही चीज अफगानिस्तान को अब इतना खतरनाक बनाती है। वो अब सिर्फ राशिद खान या मुजीबुर रहमान की स्पिन पर इन्हिसार नहीं करते। उमरज़ई जैसे खिलाड़ी
जो तेज बॉलिंग भी कर सकते हैं और आखिर में आकर तेजी से रन्स भी बना सकते हैं, वो टीम को एक बेहतरीन तवाजुन देते हैं। उनकी ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं बल्कि बाकी टीमों के लिए एक पैगाम है कि वो इस वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा करने आए हैं। तो आइए आज के दिन को समेटते हैं। श्रीलंका और इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंच गए। अफगानिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी, लेकिन दिन की सबसे बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरे से दो चार होना और इटली जैसी टीम का दिल जीत लेना है। बिल्कुल, आज के दिन ने 2 अहम चीजें वाजे की हैं। पहली, T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और दूसरी, बड़ी टीमों और एसोसिएट टीमों के दरमियान फर्क तेजी से कम हो रहा है। ये अब सिर्फ कभी कभार होने वाले अपसेट नहीं है, बल्कि एक रुझान बनता जा रहा है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, इटली के कप्तान ने जो कहा कि एसोसिएट टीमें अब बड़ी टीमों पर दबाव डाल रही हैं, क्या ये सच हो रहा है? क्या ये बड़ी टीमों के लिए एक वेकअप कॉल है? यही सबसे अहम सवाल है। क्या हम T20 क्रिकेट में ताकत के तवाजुन में एक मुस्तकिल तब्दीली देख रहे हैं, या ये सिर्फ इस फॉर्मेट की गैर मुतवक्के नौयत है जो कभी कभार ऐसे नताइज पैदा करती है? और जब दुनिया की 27वें नंबर की टीम टॉप टीमों को इस तरह परेशान कर सकती है, तो ये इस खेल के मुस्तकबिल के लिए कितना दिलचस्प और उम्मीद अफजा है, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है।